नमस्कार, केपी न्यूज के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं पूजा आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर डालते हैं। राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका बीदर द्वारा धरियासिरी पुस्तक का विमोचन किया गया। सिल्वर स्टार रोटरी क्लब की ओर से 500 पौधे पर्यावरण जागरूकता। किसानों ने कथित तौर पर याचिकाएं खारिज करने को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री सहित ने खुलासा किया कि मूडा की अनियमितताओं में सभी पक्ष शामिल हैं। 46 सालों के बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, की गई विशेष तैयारियां। एआईएमपीएलडी का बड़ा फैसला, गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को करेगा चैलेंज। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते समाचार विस्तार से। बीदर शहर के एक निजी कन्वेंशन हॉल में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बीदर के सांसद सागर खंडे ने भाग लिया। राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटक बीदर, प्रोफेसर जगन्नाथ हेब्बाड़े अभिनंदन समिति बीदर के सहयोग से प्रोफेसर जगन्नाथ हेब्बाड़े की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर धरियासिरी पुस्तक का विमोचन किया गया। इस मौके पर सांसद का सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में बसवलिंगा पट्टादेवरू, बीदर जिला कांग्रेस एवं बुढ़ा अध्यक्ष बसवराज जापशेट्टी सहित अन्य उपस्थित थे। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। ಡಾಕ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಬಸವ ಪಟ್ಟದೇವರು ಶತಾಯುಷಿಗಳ ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಯೇ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಭಾರತಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇದೊಂದು ಬಹಳ ಬಹುತೇಕ ನಮ್ಮ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಭಾರತಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಮುಂದಿನ ಕೆಲಸ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಭಾರತಿ ಮಠಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸಂವಾದ ಮಾಡಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದು ಅವರು ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ, ಕನ್ನಡದ ಭಕ್ತಿ ಅದು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತದ ಅನ್ನುವ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಂತೋಷ್ ಹಾನ್ಗಲ್ ಅವರು ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪರಮ ಪೂಜಾ ನಾಡೋಜ ಬಸವಲಿಂಗ ಪಟ್ಟದೇವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಗೂ ಪೂಜಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಂಗಾಂಬಿಕಾ ಅವರ ಪಾದಗಳನ್ನು ನಮಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಿಎಸ್ ಬಿರಾದರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಸಂತೋಷ್ ಹಾನ್ಗಲ್ ಅವರಿಗೆ, ಪಿಕೆ ಖಂಡೋಬಾರ್ ಅವರಿಗೆ, ವಿಕ್ರಮ್ ವಿಸಾಜಿ ಅವರಿಗೆ, ಬಸವರಾಜ್ ಜಾಪಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜಗನ್ನಾಥ್ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಸರ್ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ನನಗೆ ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. 2-3 ದಿನದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಫಾಲೋಅಪ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮದುವೆ ಇತ್ತು, ಪಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಮದುವೆಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಒಂದು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಲಕ್ಕೆ ಲೇಟ್ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಅವರಿಗೆ ಯಾರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಚಾರ. ನಮ್ಮ ಭಾವರು ಶಿವರಾಜ್ ಸುರೇವರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವರು ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶಿವರಾಜ್ ಸುರೇವರ ತಂಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ತಂಗಿ ನನಗೆ ಧಾರೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದ. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ತು. ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಡತಿಯ ಪ್ರೀತಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯವರನ್ನು ನೆನೆಸ್ಬೇಕು. ಅವ್ರ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಸ್ವತಿ ಸುಪುತ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ, ಸಹನೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿಗೆಯವರಿಂದ ನಮ್ಮ ವೈರಿ ಅಂತ ಏನು ಅಂತೀವಲ್ಲ ಮರಾಠಿ ಶಬ್ದದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯ ನನಗೆ ಬಹಳ ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನನಗೆ. ಆ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗುಂಡಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬಾಳೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನೀಲಕ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಲಿತಾಬಾಯಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದಾಸೋಹ ನಡೀತದೆ ಯಾವಾಗಲೂ. रोटरी क्लब ऑफ बीदर सिल्वर स्टार द्वारा ग्रीन ब्रीथ के मिशन के साथ शहर के नए बस स्टैंड के पास 500 पौधे लगाकर पर्यावरण जागरूकता पैदा की गई।
क्लब के अध्यक्ष सरदार पुनीत सिंह ने कहा कि हम बीदर में भी अच्छा हरा भरा वातावरण बनाने के उद्देश्य से बीदर शहर में कुल 500 पेड़ लगाएंगे और उनका पालन पोषण करेंगे। वहीं बोलते हुए क्लब के सलाहकार और महीनों नियुक्त जिला अध्यक्ष बसवराज धन्नूर ने कहा कि बीदर को भी बेंगलुरु की तरह हरा भरा बनाना चाहिए। इसके लिए हमारे सिल्वर स्टार्स ने एक महान कार्य में हाथ मिलाया है और बीदर में 500 से अधिक पौधे लगाने का संकल्प लिया है और एक घोषणा भी की है। कार्यक्रम में अतिथि रहे बीदर नगर सभा के अध्यक्ष मोहम्मद गौस ने रोटरी क्लब ऑफ बीदर के सिल्वर स्टार द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की और कहा कि हमारी सरकार ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू की है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रोटरियंस द्वारा लगाए गए पौधों का नगर पालिका द्वारा जिम्मेदारी से पालन पोषण किया जाएगा। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। योगते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। भाजपा नेता सीएस निरंजन कुमार ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया पर 10 जुलाई को चामराजनगर में एक समारोह में किसानों द्वारा दी गई याचिकाओं को अस्वीकार करके उनके प्रति अनादर दिखाने का आरोप लगाया है। सिद्धरामैया की कथित कार्रवाई और समारोह स्थल के पास अपनी याचिकाएं डालने के खिलाफ शनिवार को बड़ी संख्या में किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने पत्रकारों को बताया कि सिद्धरामैया के चामराजनगर दौरे के दौरान जिले भर से आए किसानों ने उनसे मुलाकात की और अपनी शिकायतों और मांगों पर याचिकाएं दी। हालांकि बाद में याचिकाएं कार्यक्रम स्थल के पास छोड़ दी गई और पाई गई। प्रदर्शनकारी किसानों ने चामराजनगर जिले के प्रभारी मंत्री के वेंकटेश पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनकी याचिकाओं को खारिज करके उनका अपमान किया है। केपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री तनवीर सेठ ने कहा, मूड़ा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण में अनियमितताओं में सभी दलों के लोगों के नाम सुने गए हैं या सामने आए हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं ले सकता। मैं पिछले 15 सालों से प्राधिकरण का सदस्य हूं। मैसूर के नरसिम्हा राजा निर्वाचन क्षेत्र से विधायक सेठ ने आगे कोई प्रतिक्रिया देने से इनकार करते हुए कहा कि वह प्राधिकरण का हिस्सा है और जांच चल रही है।
इसलिए वह कुछ नहीं बोल सकते। उन्होंने दावा किया कि पिछली भाजपा सरकार के सत्ता में रहने के बाद से मूडा ने अनियमितताओं के संबंध में उच्च अधिकारियों को 12 पत्र लिखे। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया के साथ आपका मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद उन्होंने कहा, सरकारी दफ्तरों में जाकर लोगों के लिए अपना काम करवाना मुश्किल हो रहा है। इसलिए उप मुख्यमंत्री और केपीसीसी अध्यक्ष डी.के. शिवकुमार ने पार्टी कार्यकर्ताओं से जुड़े मुद्दों को सुलझाने के लिए इस आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत की है। इससे कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों से मिलने में मदद मिलती है। अखिल भारतीय शिक्षा बचाओ समिति AISEC की कर्नाटक राज्य समिति ने शनिवार को नीट परीक्षा में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी के खिलाफ सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता, पहुंच और अखंडता पर चर्चा की गई। उद्योग के विशेषज्ञों ने कहा कि नीट परीक्षाएं केंद्रीय नहीं होनी चाहिए और राज्यों पर छोड़ दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हर राज्य को अपनी प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी जानी चाहिए। कर्नाटक के पूर्व एडवोकेट जनरल प्रोफेसर रविवर्मा कुमार ने कहा कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA एक गैर पेशावर निकाय है जो परीक्षा आयोजित करता है। उन्होंने कहा, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए सरकार द्वारा चुनी गई NTA को पूर्ण शक्ति दी गई है। यह एजेंसी भ्रष्टाचार के लिए सोने की खान है। प्रोफेसर ने कहा, एक राष्ट्र एक परीक्षा के नारे के बहाने सरकार के नेतृत्व में एक अखंड न्यायपालिका है। नीट को खत्म कर देना चाहिए। राज्य से कुल 1,50,171 छात्र प्रवेश के लिए उपस्थित हुए थे और 89,088 ने इसे पास किया। देश भर में 24 लाख से अधिक छात्र नीट UG 2024 के लिए उपस्थित हुए। रोकते समाचारों का सिलसिला एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश के अन्य समाचार। ओडिशा के पुरी में मौजूद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडारा को आज खोल दिया गया है।
राज्य सरकार के द्वारा किए गए तमाम प्रयासों के बाद आज रत्न भंडार को खोला गया। वहीं बता दें कि रत्न भंडार के दोबारा खुलने से पहले श्री जगन्नाथ मंदिर में विशेष बक्से लाए गए। रत्न भंडार खोलने से पहले मंदिर और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। इसके साथ ही तमाम तरह की तैयारियां भी की गई है। इसे लेकर निरीक्षण समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति विश्वनाथ रथ ने कहा, जैसा कि तय किया गया था और जैसा कि सभी को पता था, सरकार पहले ही 3 भागों में आवश्यक एसओपी लेकर आ चुकी है। एक रत्न भंडार खोलने के लिए, फिर आभूषणों और कीमती सामानों को अपने कब्जे में लेने के लिए। दोनों भंडारों में गर्भगृह के अंदर पूर्व आवंटित कमरों के लिए आज हमने एक बैठक बुलाई, जिसमें हमने उद्घाटन और आभूषणों की देखभाल के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। बैठक में हुई चर्चा के अनुसार और पुरोहितों और मुक्ति मंडप के सुझाव के अनुसार रत्न भंडार खोलने का सही समय दोपहर 1:28 पर है। यह प्रक्रिया वीडियो रिकॉर्डिंग के 2 सेटों के साथ ही की जाएगी और 2 प्रमाणीकरण होंगे। यह एक चुनौती होगी क्योंकि 1985 में इसके आखिरी बार खुलने के बाद से हमें अंदर की स्थिति का पता नहीं है। गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को AIMPLB चैलेंज करेगा। यह फैसला आज दिल्ली में हुई बैठक में दिया गया। बोर्ड ने तर्क दिया कि शरीयत में महिला को इद्दत पूरी होने तक ही गुजारा भत्ता देने का हुक्म, उसके बाद महिला आजाद है, वो दूसरी शादी कर सकती है। इसके अलावा अगर बच्चे महिला के साथ रहेंगे तो उसका खर्चा देना पति की जिम्मेदारी। बोर्ड ने यह भी तर्क दिया। पर्सनल लॉ बोर्ड का तर्क है कि भारतीय मुसलमान शरीयत के मुताबिक अपनी बेटियों को जायदाद में हिस्सेदारी दे और कानून के मुताबिक जो बात कही गई है कि अगर तलाकशुदा महिला को जिंदगी चलाने में दिक्कत आए तो अलग अलग राज्यों के वक्फ बोर्ड उसकी जिम्मेदारी उठाए, क्योंकि बोर्ड की प्रॉपर्टी मुसलमानों की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉर्थ कैंपस में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के कार्यालय पर कांग्रेस की छात्र इकाई NSUI से दूसरे उपाध्यक्ष अभी दहिया, यश नांदल, रौनक खत्री, सिद्धार्थ शौरन सहित लगभग 40 गुंडों ने रविवार सुबह तकरीबन 3 से 4 के बीच हमला करके दूसरे अध्यक्ष तुषार डेढ़ा के कार्यालय में तोड़फोड़ की है। इसके साथ ही विजिटर रूम, दूसरे सचिव उपराजिता तथा दूसरे सह सचिव सचिन बैसला का कार्यालय भी तोड़ा गया है। इस दौरान दूसरे अध्यक्ष के कार्यालय में रखी प्रभु श्री राम की मूर्ति भी इस हमले में टूट गई। NSUI के छात्रों द्वारा दूसरे कार्यालय के विजिटर कक्ष में छात्रों के ठंडे पानी के लिए रखा गया वाटर डिस्पेंसर और प्रिंटर को भी तोड़ दिया गया। प्रत्यक्षदर्शी गार्ड ने बताया कि तोड़फोड़ के पहले उपस्थित गुंडों ने दूसरे कार्यालय परिसर में पीछे की तरफ अवस्थित NSUI से दूसरे उपाध्यक्ष के कमरे में बैठकर शराब पी। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ के इतिहास में इस तरह की घिनौनी हरकत पहले भी NSUI के गुंडों द्वारा की जाती रही है। NSUI दिल्ली विश्वविद्यालय के बाहरी असामाजिक तत्वों द्वारा जिस प्रकार की गुंडागर्दी, नशों का खुला खेल तथा अपराधियों को संरक्षण में लेकर हिंसा करती रही है, उसका अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने पहले भी विरोध किया था और आगे भी मजबूती से करेगी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तथा अभाविप से दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ में दूसरे अध्यक्ष तुषार डेढ़ा, सचिव अपराजिता तथा सह सचिव सचिन बैसला दिल्ली विश्वविद्यालय तथा दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की गरिमा के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने देंगे। देश के 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में इंडिया गठबंधन को बड़ी जीत मिली है। इसे लेकर शिवसेना UBT के राज्यसभा सदस्य संजय राउत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 13 में से 10 जीते और उसमें से कुछ सीट जो बीजेपी की थी और उससे छीनकर हमने जीत ली है। इसका मतलब यह है कि लोकसभा चुनाव में हम लोगों ने जो संविधान बचाने के लिए लड़ाई जारी की थी, वह लड़ाई हमारी जारी है। संविधान की हत्या रोकने की बीजेपी से लड़ाई हमारी जारी है। देश की जनता ने अपना मन कायम रखा कि बस हम लोकसभा में और विधानसभा में भी इन संविधान के हत्यारों को किसी भी हालत में सत्ता में आने नहीं देंगे, किसी पद पर आने नहीं देंगे। लगभग सभी राज्यों जो प्रमुख है, चाहे पश्चिम बंगाल हो, उत्तराखंड, हिमाचल या तमिलनाडु, सभी राज्यों में इंडिया गठबंधन के लिए एक बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आवास पर चंद्रबाबू नायडू की मुलाकात को लेकर संजय राउत ने कहा, चंद्रबाबू देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, वह हमारे राज्य में आए हैं। हर नेता के बीच एक शिष्टाचार मुलाकात होती है। एकनाथ शिंदे के साथ चंद्रबाबू नायडू एनडीए से जुड़े हैं। चंद्रबाबू नायडू जब तक एनडीए से जुड़े हैं, वह ऐसे आते जाते रहेंगे। जब एनडीए से बाहर निकलेंगे तो अलग घर होगा। बता दें कि राउत पहले भी नायडू पर निशाना साध चुके हैं। बिहार से होकर बहने वाली करीब सभी नदियां इन दिनों उफान पर है। कोसी,
बागमती, गंडक नदी कई जगहों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इस बीच पुल पुलियों के गिरने और धंसने की घटनाओं के बाद पुल पुलियों, तटबंधों और कटाव प्रभावित क्षेत्रों की निगरानी बढ़ा दी गई है। जल संसाधन विभाग ने सभी संबंधित इंजीनियरों को अलर्ट कर पुल पुलियों के साथ तटबंधों और कटाव क्षेत्रों की निगरानी के निर्देश दिए हैं। इंजीनियरों को नदियों के जल स्तर के बढ़ने और घटने पर नजर रखने तथा रिसाव वाले क्षेत्रों पर निगाह रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा अप्रोच सड़कों पर पड़ने वाले प्रभाव की भी सतत निगरानी रखने की बात कही गई है। प्रदेश की सभी नदियों में जल स्तर बढ़ा हुआ है। जल संसाधन विभाग के मुताबिक वीरपुर बराज में कोसी नदी का जल स्त्राव शनिवार सुबह 10 बजे 1,63,455 क्यूसेक था, जबकि अपराह्न 2 बजे 1,43,125 क्यूसेक दर्ज किया गया। गंडक नदी के वाल्मीकि नगर बराज में गंडक का जल स्त्राव सुबह 10 बजे 2,51,200 क्यूसेक था, जो अपराह्न 2 बजे 2,33,000 पहुंच गया। शुक्रवार को 2 बजे यहां गंडक का जल स्त्राव 3,35,600 क्यूसेक तक पहुंच गया था। एक बार फिर से रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय समाचार। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर गोलीबारी करने वाले एक शख्स की पहचान की जा चुकी है। हमलावर की पहचान बेथल पार्क, पेंसिल्वेनिया के रहने वाले थॉमस मैथ्यू क्रुक्स के रूप में हुई है। गोलीबारी करने वाले शख्स की उम्र 20 साल थी। बेथल पार्क बटलर से लगभग 40 मील दक्षिण में स्थित है। घटनास्थल से एक AR-15 सेमी ऑटोमेटिक राइफल बरामद हुई है। माना जा रहा है कि इसी हथियार से युवक ने डोनाल्ड ट्रंप और उनकी रैली को निशाना बनाकर फायरिंग की थी। बता दें कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर पेंसिल्वेनिया में एक चुनावी रैली में जानलेवा हमला किया गया था। हमले में ट्रंप के दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को गोली छूते हुए निकल गई। अमेरिका की सीक्रेट सर्विस के एक कर्मी ने हमलावर को मार गिराया है। सीक्रेट सर्विस संघीय कानून प्रवर्तन एजेंसी है और आंतरिक सुरक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आती है। उसने बताया कि ट्रंप शनिवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान शाम 6:15 पर एक संदिग्ध हमलावर ने रैली स्थल के बाहर एक ऊंचे स्थान से मंच की और कई गोलियां चलाई। हमले में रैली में मौजूद एक व्यक्ति मारा गया, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल है। भारत ने फलस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपनी ऐतिहासिक और अटूट प्रतिबद्धता की फिर पुष्टि की तथा वार्ता के माध्यम से विरासत समाधान का समर्थन किया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के प्रभारी राजदूत एवं उप स्थायी प्रतिनिधि आर रविंद्र ने शुक्रवार को फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के एक सम्मेलन में यह बयान दिया। उन्होंने कहा, भारत ने हमेशा बातचीत के माध्यम से विरासत समाधान का समर्थन किया है, जिससे एक संप्रभु, स्वतंत्र और सक्षम फलस्तीन देश की स्थापना हो सके। फलस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत एवं कार्य एजेंसी UNRWA के सम्मेलन में भारत का पक्ष रखते हुए उन्होंने फलस्तीनी मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के लिए नई दिल्ली की ऐतिहासिक और अटूट प्रतिबद्धता की फिर से पुष्टि की। उन्होंने कहा कि भारत ने गाजा में जारी इजराइल हमास संघर्ष पर सैद्धांतिक रुख अपनाया है और नागरिकों को, विशेषकर महिलाओं और बच्चों के हताहत होने की कड़ी निंदा की है। फिर से एक नजर सुर्खियों पर। राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन ऑफ कर्नाटका बीदर द्वारा धरियासिरी पुस्तक का विमोचन किया गया। सिल्वर स्टार रोटरी क्लब की ओर से 500 पौधे पर्यावरण जागरूकता। किसानों ने कथित तौर पर याचिकाएं खारिज करने को लेकर कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री सहित ने खुलासा किया कि मूडा की अनियमितताओं में सभी पक्ष शामिल है। 46 सालों के बाद खोला गया जगन्नाथ मंदिर का रत्न भंडार, की गई विशेष तैयारियां। AIMPLB का बड़ा फैसला, गुजारा भत्ता को लेकर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को करेगा चैलेंज।
केपी न्यूज के बुलेटिन में आज इतना ही। आप देख रहे थे हमारा चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।